नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 4 नए लेबर कोड्स लागू किए, जो कई दशकों में मजदूर कानूनों का सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद नियमों को सरल बनाना और मजदूरों की सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री अब नए कोड्स के तहत रोजगार के नियमों में बड़े बदलाव का सामना करेगी। सुधारों के एक खास बात यह है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को अब परमानेंट कर्मचारियों जैसे सभी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी इंश्योरेंस और अन्य सोशल सिक्योरिटी लाभ कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के लिए। न्यू कोड्स के साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को अब कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि में परमानेंट कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। Outdated 29 labor enactments which were redundant have been removed and replaced with 4 labor codes under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji for the safety, security, welfare and social security of laborers are concerned are the utmost priority in these codes. Apart from these, ease of doing business for industries with less compliances, outdated compliances were removed. Most particularly, Wage Code 2019, Industrial Relation Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 have been introduced for the welfare of the laborers in all sections in our country. Though there was no mandatory appointment letters in previous enactments, as far as laborer codes are concerned, giving mandatory for appointment even small and medium enterprises, every appointment shall be made through proper communication by means of appointment letter. And then social security coverage also, previously it was limited social security coverage was held, whereas every laborer had been covered in social security, most particularly gig and platform workers also included. All workers will get PF, ESIC, insurance and other social security welfare measures which introduced by the government. Minimum wage, which was exists only for those laborers who are in the schedule previously. Now this particular minimum wage has been extended as a statutory right for all the wage payments pertaining to the all laborers. Minimum wage and time-bounded payment also part and parcel in this new code. Preventive healthcare, previously it was not mandatory. Now above 40 years laborers, free annual medical checkups have been introduced. Like these timely wages and women workforce safety security measures mandatorily taken into force. And compliance requirement, huge amount of the unnecessary redundant procedural compliance were held previously, which has been wiped out. At present, single registration, PAN India, single license and single return have been introduced. हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि सभी उत्पाद जो ORS ड्रिंक लेबल के साथ या ORS शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत स्टेट के सारे रिटेल शेल्फ्स या स्टोर से हटा दिया जाए। फूड सेफ्टी कमिश्नरेट के ऑर्डर के मुताबिक सभी होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निर्देश दिया गया कि वे इन उत्पादों को तुरंत मार्केट
फार्मेसी, डॉक्टर्स क्लिनिक समेत से वापस लेकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भेजे ताकि FSSAI के डायरेक्टिव्स के अनुसार रीलेबलिंग की जा सके। उन्हें रिकॉल प्रोसेस के दौरान पूरी ट्रेसेबिलिटी के लिए SOP का पालन करने को भी कहा गया है। इस कार्रवाई की इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग पूरी स्टेट के डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स करेंगे। मेघालय टूरिज्म मिनिस्टर टिमोथी डी शिरा ने थर्सडे को घोषणा की कि शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए एक परमानेंट वेन्यू सिटी के बाहर निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा, अब एक परमानेंट साइट शिलोंग के बाहर बन रहा है क्योंकि वही अभी कंस्ट्रक्शन में है, इसीलिए लगता है कि इस साल ही फेस्टिवल शिलोंग में हो रहा है क्योंकि यहाँ JN स्टेडियम जैसे अच्छे स्पेस उपलब्ध है। ये जवाब तब दिया गया जब सरकार पर कंजेस्टेड शिलोंग में इवेंट करने को लेकर आलोचना की गई। There are, say, certain people who doesn't like music. There are some people who like music. So, like this, you see, there are different people say with different outlook, with different taste. So, what's the preparation for Megong Festival? It is under construction now also. We have a separate site now. It will be a permanent site. Say in between the Villamanagara and the Zhengjal, National 51, National Highway 51. So that will be held this year in that permanent site. It is under construction. May not be, it is all completed now. I say at least 75% will be completed, and then it will be, I think, possible for us to hold a Megong festival there. And no international artists that will be performing? That I'm yet to know. There are some proposals to bring the international music party also. सर्दी की शुरुआत के साथ इंडियन रेलवेज ने गहरी धुंध के कारण रेल सेवा में बढ़ा जैसे लंबे सफर के ट्रेन की डिले और कैंसिलेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर से फरवरी तक काफी ट्रेन कैंसिल होने की संभावना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR के मुताबिक दिसंबर 1, 2025 से मार्च 3, 2026 तक कुल 24 पेयर्स ऑफ ट्रेन यानी 48 अलग अलग ट्रेन सर्विसेज कैंसिल की जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है अपनी यात्रा के लिए ऑल्टरनेट ट्रेन चेक करें। ये कैंसिलेशंस अलग अलग रूट्स पर फेज वाइज लागू होंगी, जिसमें डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस और कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस जैसी ट्रेन प्रभावित होंगी। एक दुखद घटना में दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स IAF के पायलट विंग कमांडर नमन सयाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया और इवेंट में मौजूद लोग हैरान रह गए। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निवासी नमन सियाल एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल के बेटे थे जो कभी IAF में भी सेवा दे चुके थे। वो नागरिकता भवन के वार्ड 7 के रहने वाले थे। सैनिक स्कूल सुजनपुर तीरा के एक्स स्टूडेंट और उनकी पत्नी भी IAF ऑफिसर है। लगभग मध्य 30 की उम्र में सियाल अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और छोटी 6 साल की बेटी को छोड़कर चले गए।
शिलोंग लिटरेरी फेस्टिवल SLF के 5वां एडिशन 20 नवंबर से मेघालय के वॉर्ड्स लेक में चेरी ब्लॉसम्स के बीच शुरू हो गया। फेस्टिवल में 60 से ज्यादा मशहूर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेखक, फिल्म मेकर्स, पोएट्स और थिंकर्स शामिल हुए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर बानू मुस्ताक और शेहान करुकर्रात ने भी उपस्थित हुए। मशहूर लेखक फ्रांसिस्क मिराल्स, इकिगाई के लेखक और सैम डैरलिम्पिल, शैटर्ड लैंड्स के लेखक भी शामिल हुए। What are the images you think we can have? What are the images you can think? तो आता भी नहीं था। Our body is a vessel for the ship. Do we agree? Body and mind. Ship. Out of this earth and trying to pretend that we are people. Friends, memories. अरे वो नॉर्थ ईस्ट के रिवर कनेक्टिविटी ग्रिड को बूस्ट देने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने असम पेट्रोल केमिकल लिमिटेड, असम सरकार और कई प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कई बड़े MOU साइन किए हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने का काम शुरू कर दिया है। ये एग्रीमेंट्स यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में अनाउंस किए गए। ये कदम ब्रह्मपुत्र और रीजन के रिवर सिस्टम्स को व्यापार, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के बड़े केंद्रों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डेवलपमेंट के सिलसिले में असम हो या मिजोरम हो, नागालैंड हो या मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो या त्रिपुरा हो, हर प्रदेश में अलग अलग हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग में जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने ली है, इस कार्यक्रम को समय पे पूरा करने के लिए आज डिटेल पे रिव्यू हुई है। इस रिव्यू बैठक में असम सरकार की PWD विभाग हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या उनके इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट हो, और बाकी इंडियन गवर्नमेंट की हमारे रेलवे मिनिस्ट्री और NSIDCL और हमारे मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और हमारे NINI अलग अलग संस्थाओं की आज सभी लोगों का उपस्थिति में हम लोगों ने डिटेल पे रिव्यू की है। कौन सा प्रोजेक्ट किस हालत में है और कब पूरा होगा, पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाना होगा, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज हो और तेज गति देने के लिए विकास यात्रा को आज हमारे विभाग की तरफ से भी
ये भी तय किया है हर प्रोजेक्ट अगले दिनों में हम समय पे पूरा करेंगे, सबका सहयोग रहेगा और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नीति है सबका साथ लेकर हमें विकास यात्रा को सफल बनानी है। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा पर अगले दिनों में विशेष रूप से कदम उठाया जाए। सर 76 वाटरवेज का जो ऑपरेशनल टारगेट लिया गया है 2027-28 को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे हर वाटरवेज ऑपरेशनल हो और हर वाटरवेज में हमारे लोगों के लिए कार्गो हो या क्रूज हो या पैसेंजर्स हो, इसका वेसल हम सही ऑपरेट करने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, इस फैसिलिटी एनहांसमेंट के लिए भी हमारे मंत्रालय से कदम उठाया गया है। और हम चाहते हैं कि जो जलमार्ग जो है, इस जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग को सही हम उपयोग करें। देश की विकास यात्रा में हमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। जम्मू और कश्मीर से एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर हंडवारा पुलिस और इंडियन आर्मी के नौगाम ब्रिगेड ने नीरियन फॉरेस्ट LOC के करीब नौगाम सेक्टर में जॉइंट ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हाइड आउट बस किया गया और ये सामान बरामद किया गया। 2 M सीरीज राइफल्स और 4 मैगजीन्स, 2 चाइनीज पिस्टल्स और 3 मैगजीन्स, 2 हैंड ग्रेनेड्स, कुछ लाइव राउंड्स। ये जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी। केरला के लोकल बॉडी इलेक्शन से जुड़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केस रजिस्टर्ड किया गया है। PTI के मुताबिक थिरुवनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस ने सैटरडे को केस दर्ज किया। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रेस किया गया, जिसमें फैब्रिकेटेड फोटो और एडिटेड वीडियो था। पुलिस का शक है कि यही वीडियो अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी सर्कुलेट हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भगवत ने फ्राइडे को भारत को एक सभ्यता के रूप में याद करते हुए उसके जीवन और तिकोपन को हाईलाइट किया। भगवत ने कहा कि इंडियन सोसाइटी का नेटवर्क ऐसा है कि हिंदू समुदाय हमेशा बना रहेगा। वो मणिपुर के 3 दिन के दौरे की दूसरे दिन सभा को संबोधित कर रहे थे। परिस्थिति का विचार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप देखो परिस्थिति आती है और जाती है। देखो दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है।
मुंबई महाराष्ट्र में थाने स्टूडेंट सुसाइड केस पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, मराठी थी, है और रहेगी महाराष्ट्र की प्राइमरी लैंग्वेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी भाषाओं से नफरत करें। ऐसी सोच क्या है? भाषा संवाद का माध्यम होती है। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र के अतीत में भी पहली भाषा मराठी थी, वर्तमान में भी है, और जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक मराठी ही रहेगी। पर इसका कतई ये मतलब नहीं बनता कि हम अन्य भाषाओं से घृणा करें, अन्य भाषाओं का द्वेष करें। ये कौन सी मानसिकता है? भाषा एक संवाद का माध्यम है। अपनी हर प्रांत की अपनी भाषा है, उस भाषा का स्वाभिमान होना स्वाभाविक है। पर उस भाषा के आधार पर मारपीट और उस भाषा के आधार पर किसी की जान चली जाती है, तो ये आपकी कितनी घिनौनी और ओछी राजनीति है। मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ दल ऐसे हैं, मन से हो, उबाटा हो, जो जनाधार खो चुके हैं, और जनाधार खोने के बाद वो फिर से नए से कुछ जनाधार ढूंढने की कोशिश में मारपीट करेंगे। दुनिया बदल गई है, सारा विश्व किस दिशा की ओर जा रहा है, और हम एक सिकुड़ी हुई सोच की ओर बढ़ रहे हैं। जिसकी मौत हुई दुखद है, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी कभी यह विचार नहीं दिया। वे स्वयं हिंदी अच्छी बोलते थे, वे स्वयं इंग्लिश अच्छी बोलते थे। वे दुर्भाग्य से उबाटा और मनसे के नेता खोया हुआ जनाधार मारपीट के जरिए, भाषा के जरिए पाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे आने वाले चुनाव में उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, केवल और केवल असफलता मिलेगी। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया, दाबरा विलेज में स्कूल के पास झाड़ियों में लगभग 161 जेलेटिन स्टिक्स मिले। लोकल पुलिस साइट पर पहुंची और बीडीएस टीम को बुलाया गया। बीडीएस टीम ने पूरी जगह का सर्वे और इंक्वायरी की। अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मानीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में, नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहां, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के 48 घंटे साइबर क्राइम क्रैकडाउन ऑपरेशन पर जेसीपी आईएफएसओ रजनीश गुप्ता ने कहा, इस ऑपरेशन का नाम सी हॉक है। इसमें 4000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया और लगभग 877 एक्यूज को गिरफ्तार या कानूनी रूप से बंद किया गया। सारे थानों ने मिलकर साइबर स्कैम्स की बैकबोन तोड़ने का प्रयास किया है। यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस द्वारा साई हॉक नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अंदर करीब 4000 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया और लगभग 877 हमने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया या बाउंड डाउन किया है। विद दिस ऑल द लोकल पुलिस स्टेशंस, हमारे सभी थानों ने फील्ड में रहकर इस ऑपरेशंस के जरिए साइबर स्कैमस्टर्स की एक बैकबोन को तोड़ने का एक प्रयास शुरू किया है। इसको हम जारी रखेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम में आज खेला जाएगा। एक फैन बोला, हमें बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये पहली बार यहाँ हो रहा है। शुभमन गिल इंजर्ड है, हम केएल राहुल को सपोर्ट करने आए हैं। एक्साइटेड, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ में ऐसा हो रहा है तो हाँ, इस बार बहुत अच्छा खेलेगा। क्यों नहीं आ रहा? तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? आज तो लाइक सुमन गिल तो ऑलरेडी इंजर्ड है, तो आज को हम लोग केएल राहुल को सपोर्ट करने आए हमें।
बीजेपी लीडर नीतीश प्रामाणिक ने कहा, अगर टीएमसी बीएसएफ पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम लगा रही है तो ममता बनर्जी से पूछो कि बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का लगभग 400 किलोमीटर अब तक अनफेंस्ड क्यों है। सेंटर ने बार बार स्टेट को बोला कि उस हिस्सा को एक्वायर करके सरकार को दे ताकि फेंसिंग हो सके, लेकिन ममता दीदी डबल फेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, इसके लिए अगर टीएमसी अगर इन्फिल्ट्रेशन के लिए बीएसएफ को दोष देते हैं तो मैं पहले कहूंगा कि आप जाकर टीएमसी से ये पूछिए, ममता बनर्जी से ये पूछिए कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 450 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड एरिया है जो स्टेट अभी तक एक्वायर नहीं किया और केंद्र को नहीं दिया, और इसके लिए जो है बार बार केंद्र से स्टेट को बार बार पत्र प्रेरण किया गया, बार बार चिट्ठी लिखा गया कि आप लोग जल्द से जल्द ये जो अनफेंस्ड एरिया है, जो एरिया अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुआ है, उसको एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए ताकि वहां पर फेंसिंग हो पाए। ममता दीदी किस लिए अभी तक ये एक्वायर नहीं कर रहे हैं, क्या स्वार्थ है इसके पीछे, ये पूछना चाहिए। ममता दीदी दोगला राजनीति कर रहा है। एक तरह ये पूरा जो एरिया है इसको यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तब इन सभी घुसपैठी को यहाँ पर पनाह देता है, प्रिविलेज देता है। टीएमसी का पंचायत प्रधान के माध्यम से उन लोगों को सारे फर्जी कागजात मिलता है, और उसके बाद ममता दीदी ही उन लोगों के लिए लड़ते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि ममता दीदी का जो फर्जी वोटर बैंक है उन लोगों से ही चलते हैं। अगर ये घोस्ट वोटर नहीं रहेगा तो ममता दीदी का सरकार भी बंगाल में नहीं रहेगा। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। International Football Tournament 2024. And from education category, Medicine Grace Salapa Hall have secured 80.33% in secondary school living certificate. I don't believe this, but I do this in a program called CM Connect. What we are having today is actually CM Connect. Many difficult questions are asked, and all the department officers are sitting right there to reply, and I'm there of course to back them up in whatever way possible. So it's something that we have been doing for a long time, and the reason why we do this is because we as politicians, especially the three of us present out here, the biggest complaint against us as politicians is what? That politicians only show up during election. Correct? That is the biggest complaint. And that is what we want to change. We want to give the message to the people. I mean, election is 2 years away, 2.5 years almost away. We have a long time. Sports. We have already had discussion in the last 3 hours, and I can give you the assurance, as I said, right here, right now. We have 2 years, so therefore I cannot run away from it. So I'm giving you the assurance that
the fencing and the VIP gallery will be implementing it immediately. So, and at the same time, the basic grass that has to be grown, it may not be the quality that say we have in Jain Stadium right now, because that requires a lot of drainage and other things. But so that the sports person are not hurt and are safe, we will try to improve the ground also. But fencing and gallery, VIP gallery, is something that we have already decided. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।